Hello students, today we will continue the chapter biomolecules and now we will discuss carbohydrates. In carbohydrates, you will see that there are two types of molecules, both types of molecules, biomicromolecules भी और biomacromolecules भी इसी में आते हैं. Just a second. So, sugars are called as biomicromolecules and glycogen, starch and cellulose, these are biomacromolecules. चलिए अब हम पहले देख लेते हैं क्या कॉम्पोजिशन है इनकी. They form 1% of the cell content and they contain carbon, hydrogen and oxygen, only 3 nutrients, and they are hydrates of carbon. Chemically, these are hydrates of carbon, and general formula is CnH2nOn. For example, formula of glucose is C6H12O6, right? And they are also called as saccharides. Saccharides क्यों बोलते हैं? Because saccharone means sugar. That is why these are also called as saccharides. Chemically, they are called as polyhydroxyaldehyde or ketones. क्योंकि इसमें hydroxyl group, many hydroxyl groups are there. That is why called as polyhydroxyaldehydes or ketones. They contain many hydroxyl or alcoholic groups, right? In addition to carbonyl group. Carbonyl group, if present at the end of the chain, notice that it is called as aldehyde, and carbonyl group if present at the middle of the chain, then it is called as ketone. The sugar having aldehyde group is called as aldose, and the sugar having ketonic group is called as ketose. For example, you can see here, glucose is aldose and fructose is ketose, right? And this is the structure of glucose. These are hydroxyl group and these are hydrogen group, and this is aldehyde group, right? This CO group is at the terminal end, at the end of the carbon chain, and here this CO group is the middle of the carbon chain, means away from the end of the carbon chain, right? You can take screenshot also. Now, these are the types of carbohydrates: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Just a second. Anji. Monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Out of these three, monosaccharides and oligosaccharides are biomicromolecules, and only polysaccharides are called biomacromolecules. These monosaccharides are also called as simplest sugar. ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. These are called as which saccharides are called as simplest sugar? That is monosaccharides. General formula is CnH2nOn, carbon atoms 3 to 7. For example, if carbon atom 3 in the molecule, then it is called as trioses, means C3H6O3. When it is having 4 carbon atom in the molecule, then tetroses, means C4H8O4. And when it is having 5 atoms in the molecule, carbon atom in the molecule, then pentoses, C5H10O5. When it is having 6 atoms in the molecule, then hexoses, C6H12O6. And when it is having 7 atoms in the molecule, then called as haptoses, means C7H14O7, right? अब हम देखते हैं इसमें, इनमें से मैंने ये क्यों मार्क किया हुआ है आपको, पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस, बिकॉज दीज आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर्स. ये देखिए, पेंटोजेस लाइक, और पेंटोजेस में कौन सी, राइबोजेस एंड डीऑक्सीराइबोजेस, दीज आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट. एंड हेक्सोजेस में कौन से हेक्सोजेस, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, दीज आर
biologically important monosaccharides, right? Ribose sugar occurs in RNA and deoxyribose sugar occurs in DNA. अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे, ठीक है? तो इसमें ये डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो डीएनए में होगी. ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड इन लिविंग सिस्टम and it is also called as grape sugar or dextrose. And fructose is common in fruits and it is called as sweetest sugar, sweetest sugar. And the galactose is also called as brain sugar. It is found in dairy products like and fruits like papaya, date palm and sugar beets, right? चलिए अब हम इनके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. Monosaccharides occur in two forms, open or straight chain and ring or cyclic form. Structure of monosaccharides, for example, हम सबसे पहले देखते हैं पेंटोजिस के. ये पेंटोजिस के भी देखो स्ट्रेट चेन है और ये रिंग फॉर्म है. डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रेट चेन एंड रिंग फॉर्म. तो इसमें आप देखेंगे, ये देख रहे हो आप 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 कार्बन वाले को हम बोलते हैं पेंटोजिस. 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर्स, दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है. तो ये सिंपल देख सकते हो, एक साइड हमने OH लगाया हुआ है और एक साइड HH लगाया हुआ है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाया हुआ है. और इसका अगर हम रिंग स्ट्रक्चर देखें तो रिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये O है, 1 2 3 4 कार्बन, 5th कार्बन यहाँ पर अटैच होगा, CH2OH. दिस इज 5th कार्बन, राइट? अब इसमें लिटिल ट्विस्ट है इसी स्ट्रक्चर में जिससे डीऑक्सीराइबोज बन गया. सेम जस्ट एक्सेप्ट जस्ट वन डिफरेंस, दैट इज यहां से O नहीं गायब है, मतलब यहाँ O नहीं है. मतलब अगर हम इसको देखें सेकेंड कार्बन पर O नहीं है, ये वाला O यहाँ पर एब्सेंट है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि ये वाला O यहाँ पर मिसिंग है, राइट? तो इसको इसीलिए बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज. अदरवाइज सारी सिमिलैरिटीज वही हैं, सब कुछ वैसे ही सिमिलर है, सिर्फ हमने O रिमूव किया है बस, और कुछ नहीं है, सब सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोजेस. वही स्ट्रेट चेन रिंग फॉर्म, स्ट्रेट चेन रिंग फॉर्म, इसमें भी सेम है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम होगा. सेम कार्बन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम होंगे. तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें इस डायग्राम के अंदर ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो इसमें 6 कार्बन एटम्स है, उसमें 5 थे, राइट? पेंटोज शुगर में इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं. तो इसमें देख रहे हो OH ग्रुप, यहाँ पर बस ये थर्ड वाले कार्बन पर OH ग्रुप की ये वाली साइड है और बाकी सारा सेम है इधर, ठीक है? तो इसमें रिंग वाला देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर होगा, ये 6 कार्बन है, ये ध्यान देना है आपने, राइट? तो ये 6 हो गए टोटल. ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन. अब फ्रक्टोज में हमने देखा था कि C डबल बॉन्ड O कहां पर है? ये है चेन के मिडल में, टर्मिनल साइड्स पे नहीं है. और इसका जो ये है रिंग स्ट्रक्चर भी उससे डिफरेंट होगा. इसमें ऐसे लगता है पेंटोज शुगर का है, देखने में ऐसे लगता है, क्योंकि 5 कार्बन एटम रिंग के अंदर है. 1 2 1, अच्छा सेकेंड कार्बन ये है, ये सेकेंड कार्बन है. 3 4 5 6 कार्बन ये है, ये डिफरेंस है इसके अंदर. और इसमें देखेंगे अगर गैलेक्टोज में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है सेम ग्लूकोज की तरह ही है, सेम, बस इसमें सेकेंड कार्बन वाला जो थर्ड और फोर्थ कार्बन वाले OH हैं वो इस साइड है, राइट? बाकी सारा वही सेम है. इसमें सिर्फ थर्ड वाला था, इसमें फोर्थ वाला OH भी इस साइड पे है. और इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस इसमें यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये है फोर्थ कार्बन पे HOH और उसके अंदर फोर्थ कार्बन पे ऊपर OH है, नीचे H है, बाकी सारा सेम है. तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते, लेकिन रिकॉग्निशन पता होनी चाहिए, इसलिए आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा. मोनोसेक्राइड्स आर मोनोमर्स ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो आपको ये पूछा जा सकता है, नेम द मोनोमर्स ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. क्या है? मोनोसेक्राइड्स, राइट? या मोनोसेक्राइड्स कौन सा पॉलीमर बनाते हैं? तो आप बताओगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. अब आइए नेक्स्ट, ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर
ये हम देखेंगे कैसे बनते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ये देखिए, दे आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 to 6 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स एंड द बॉन्ड बिटवीन 2 to 6 मोनोसेक्राइड, ध्यान रहे, and the bond between two monosaccharide units is called as glycosidic bond, and this glycosidic bond is formed between carbon atom 1 and carbon atom 4. You can see here glucose and glucose का ये carbon atom 1 है और ये carbon atom 4 है, इसमें से ये HOH मिल करके बना देगा water और ये बन गया glycosidic bond, right? Maltose is formed by for example, maltose is formed by 2 glucose units. This is called as oligosaccharide, means it is disaccharide. तो हम देख लेते हैं ओलिगोसेक्राइड की भी टाइप्स कितनी होती हैं। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड। Disaccharide means having 2 monosaccharides. Trisaccharide means 3 monosaccharide units. Tetrasaccharide means 4 monosaccharide units. Pentasaccharide means 5 monosaccharide units. And hexasaccharide means 6 monosaccharide units. Disaccharides are most abundant oligosaccharides. जो disaccharides हैं, बाकी को हम पढ़ेंगे भी नहीं, only disaccharides. Disaccharides are most abundant oligosaccharides and these are also called as double sugars. ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, which are considered as double sugars, that is disaccharides, and disaccharides are considered as bio micromolecules. Now, biologically important disaccharides are maltose, sucrose and lactose. ये बनते कैसे हैं ये मैंने पहले भी बताया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनेंगे, एक वाटर रिमूव होगा और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फिर ये बन जाएगा डाइसेक्राइड। सभी डाइसेक्राइड का यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। हमने यहाँ पर ये दिखाया हुआ आपको माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज and sucrose is formed by glucose plus fructose and lactose is formed by glucose plus galactose. इस तीनों में कॉमन है ग्लूकोज, सब में एक एक जोड़ दो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। माल्टोज इज कंसिडर्ड एज माल्ट शुगर, सुक्रोज इज कंसिडर्ड एज टेबल शुगर और केन शुगर एंड लैक्टोज इज कंसिडर्ड एज मिल्क शुगर। अब आइए, इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, ये मैंने पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर and it is non-reducing and it is reducing sugar. It is found in malt grains and germinating seeds, and it is found in sugar cane and sugar beets, and it is found in mammalian milk. अब इसमें ये देख सकते हो, ये दिखाया हुआ आपको कि कैसे कंडेंस होकर के डाइसेक्राइड बनाते हैं। इसका बॉन्ड हम पीछे देख चुके हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लूकोज है, ये कोई भी कंसिडर कर सकते हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज। इनमें ये कंडेंस होकर के बना देंगे वाटर, ये वाटर एंड डाइसेक्राइड, दैट इज C12, H22 एंड O11। इसके साथ ही ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का ये मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड खत्म होता है। पॉलीसेक्राइड हम पढ़ेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।